عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا نہیں۔ اور یاد رکھنا، میں اپنے جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس کی زندگی میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے اس کی زندگی کبھی پربہار نہیں ہو سکتی، اس کی زندگی خوشیوں سے مالا مال نہیں ہو سکتی۔ آج انسان سب کی دعا لینا چاہتا ہے، ماں باپ کی دعا نہیں لینا چاہتا، مگر یاد رکھیں آپ کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا ادیب اگر آپ کے لیے دعا کر دے، اللہ چاہے تو دعا قبول کرے، اللہ چاہے تو رد کر دے۔ وہ قادر و قیوم بے نیاز ہے، وہ چاہے جس کی دعا رد کر سکتا ہے، اس کے لیے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اس پہ کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ وہ کرم، وہ قبول کرے تو کرم ہے، رد کر دے تو اس کا عدل ہے۔ اللہ چاہے جس کی دعا رد کر دے، لیکن سنو سب کی دعا رد ہو سکتی ہے، کسی کی دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے سوائے ایک دعا کے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا رد نہیں کرتا بلکہ قبول کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں دعا والدہ لولدہ کا دعائی لکم، تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لیے ہوا کرتی ہے۔ جب کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو اللہ کا عرش جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں؟ آج ایک ماں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہی ہے، جب تک تو اس کی دعا قبول نہ کرے گا میں رکنا، میں ہلنا بند نہیں کروں گا۔ قدرت کی طرف سے جواب آتا ہے تو نے ہلنا بعد میں شروع کیا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں ہم 5 وقت کے نمازی ہے، نیک ہو گئے بہت، ماں نماز نہیں پڑھتی اس کی دعا میں کیا اثر ہو گیا؟ ماں اگر نماز نہیں پڑھتی تو بھی اس کی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ ماں کا مرتبہ نمازی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ماں کا مرتبہ نیک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ماں کا مرتبہ ماں ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایک صحابیہ بارگاہ رسالت میں آ کے کہتی ہے آقا میری ماں شراب پیتی ہے۔ صحابیہ کہہ رہی میری ماں شراب پیتی ہے، کیا میں اپنی ماں کی خدمت کروں؟ حضور فرماتے ہیں ہاں خدمت کر۔ عرض کی حضور وہ شراب پینے کے لیے میخانے میں جاتی ہے، حضور فرماتے ہیں محبت سے سمجھا، اور اگر نہ مانے جب وہ شراب پی کے بے ہوش ہو جائے تو ادب سے اس کو اٹھا کر لا اور اس کے بستر پہ لٹا دے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، لیکن آج ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہیں ہے۔ ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھا جاتا ہے، ماں باپ کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا ہمیشہ جوان نہیں رہو گے، جس دن تمہاری جوانی ڈھلے گی تم بھی باپ بنو گے، خواتین بھی ماں بنے گی۔ تم نے اپنی اولاد کے ساتھ جیسا سلوک کیا تمہاری اولاد اس سے بدتر تمہارے ساتھ سلوک کرے گی۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرو گے، جیسا سلوک کرو گے، اگر ان کو ستایا اس سے زیادہ تم ستائے جاؤ گے، اور تم نے ان کی خدمت کی تو اس سے زیادہ تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ یہ بڑے عظیم لوگ ہیں۔ ماں باپ کا جھری پڑا ہوا چہرہ دیکھنا وہ ثواب کا درجہ ہے کہ کسی خوبصورت کو دیکھنے پر بھی وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہرے کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس دن یہ چہرے قبروں میں چلے جائیں گے نا، پھر ان چہروں کو ترسو گے تو یہ چہرے کبھی خواب میں بھی نظر نہیں آئیں۔ یہ چہرے ہر عبادت کی قضا ہے۔ میں اپنے اہل علم دوستوں سے توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں تو میری اصلاح کریں۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ عشاء نہیں پڑھی، کبھی احساس ہو گیا کہ میں نے فروری کی 2019 کی 9 تاریخ کی عشاء نہیں پڑھی تھی، زندگی میں جس دن احساس ہو جائے اس دن پڑھو، اس کی قضا ہے۔ 10 تاریخ کی فجر نہیں پڑھی تھی، جس دن احساس ہو جائے پڑھ لیا، زندگی بھر میں اس کی قضا ہے۔ ہر عبادت کی قضا ہے۔ ماں باپ کا
सकती, उसकी कभी कज़ा नहीं हो सकती। और जिंदगी में जिस दिन माँ बाप नहीं होंगे उस दिन आपको अपने माँ बाप याद आएंगे। अरे मैं क्या और आप क्या, अपनी क्या औकात और अपनी क्या हैसियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद जिंदगी में कई मर्तबा अपने माँ बाप याद आए। अगर हर मौके का जिक्र करूं तो एक तवील वक्त चाहिए, लेकिन तो मैं अर्ज कर रहा था कि कई बार हुजूर को वालिदैन याद आए, लेकिन एक मकाम पर हुजूर एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं, एक मौका सिर्फ अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब माँ बाप की याद आती थी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ जाते। हुजूर को जाहिर सी बात है, जो रहमतुल लिल आलमीन हो, जो सबसे प्यार करते हो, वो अपने माँ बाप से कितना प्यार करते हो। और हुजूर के माँ बाप जैसे माँ बाप होने की हैसियत से किसी के नहीं है। अगर बात हुजूर के वालिदैन की आई है तो मुझे हुजूर की अम्मी जान की याद आ गई। हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना, जब लोग दौरे जिहालत में जीते थे तो उस वक्त हुजूर की अम्मी के पास इतना इल्म था कि हुजूर की अम्मी शायरी करती थी, शायरा थी हुजूर की अम्मी जान। उनकी शायरी किताबों के अंदर मौजूद है। बहुत बड़ी दानिश्वर थी हुजूर की अम्मी जान सैयदा आमिना खातून सलामुल्लाह अलैहा। बल्कि हुजूर की अम्मी की याद आई है तो मैं दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। एक बात कहना चाहता था लेकिन एक बात और याद आई। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उस वक्त हुजूर की अम्मी का विसाल हो गया, हुजूर की वालदा का विसाल हो गया। विसाल का सबब ये चीज बनी कि हुजूर की उम्र 6 साल की थी। हुजूर की अम्मी जान ने कहा, मेरे शहजादे मोहम्मद, तुमने अपने वालिद की जियारत नहीं की है, एक काम करो कि तुम्हारे वालिद की कब्र यसरब में है, यानी मौजूदा मदीना मुनव्वरा। उस वक्त वो मदीना नहीं बना था, यसरब उसको कहलाता। यसरब में है तुम्हारे अब्बा की कब्र। चलो, तुमने बाप का चेहरा तो नहीं देखा, तुमको वालिद के मजार की जियारत करा करके लाती हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में पहला सफर करते हैं। हुजूर का ये पहला सफर है 6 साल की उम्र में। और 6 साल की उम्र में पहला सफर हज के लिए नहीं है, तिजारत के लिए नहीं है, नमाज के लिए नहीं है, बल्कि मजार की जियारत के लिए। बड़ी माजरत के साथ जो दोस्त कब्रों के मुखालिफ हैं, मज़ारात की ज़ियारत के मुखालिफ हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हुजूर ने तो जिंदगी का पहला सफर मज़ार मुकद्दस की ज़ियारत के लिए किया, और वो भी अपने वालिद के मज़ार की ज़ियारत के लिए। 6 साल की उम्र में हुजूर अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी ठीक है। दरअसल बात ये थी कि हुजूर अपनी माँ के पेट में थे और सिर्फ 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने के अंदर अमल की शक्ल में थे। हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। हुजूर के वालिद का विसाल हो गया। वो तिजारत के लिए गए थे, मुल्क के शाम से वापस लौट रहे थे, जिसे हम मदीना मुनव्वरा कहते हैं। अब जब वहां पहुंचे तो उनकी ननियाल में रुके, बीमार हुए और वहीं पर आपका विसाल हो गया। तो हुजूर की अम्मी ने कहा था, बेटा चलो मैं तुम्हें अब तुम्हारे वालिद की मजार की जियारत करा दूं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और इजाजत लेकर के 3 नफरी काफिला हजरत सैयदा आमिना और उनकी कनीज उम्मे ऐमन और हुजूर अलैहिस्सलाम, ये तीनों चल पड़े मदीने शरीफ की तरफ। अब मैं उसको यसरब नहीं कहूंगा क्योंकि हमारे यहाँ यसरब कहना बेअदबी है, लेकिन अब आप समझ लें कि वो यसरब पुराना नाम है और अभी वो मदीना नहीं बना था, लेकिन फिर भी मैं मदीना मुनव्वरा कहूंगा। तो सरकार चले। 1 महीने तक हुजूर ने अपनी अम्मी के साथ वहां क़याम किया, बचपने में 6 साल की उम्र में, और कब्र वालिद की कब्र पे जाते अम्मी के साथ। जब रुखसती का वक्त आया कि अब जाना है मक्कतुल मुकर्रमा, तो हुजूर की अम्मी कभी अपने शौहर की कब्र को देखती है और कभी हुजूर के चेहरे को देखती है। और शौहर का सदमा, हुजूर की अम्मी जान की उम्र अभी 18-19 साल ही थी कि वो बेवा हो गई। 18-19 साल की उम्र में बेवगी आखिर क्या चीज होती है? सोचे ना जरा, अगर कोई औरत
19 साल की उम्र में यतीम हो जाए तो उसको उतना सदमा नहीं होता जितना उसको बेवा होने का सदमा हो। हुजूर की अम्मी बेवा हुई है इतनी छोटी सी उम्र में, और हुजूर के वालिद का विसाल इतनी छोटी उम्र में हुआ है कि उनको अभी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, बाल निकलना शुरू हुए थे और उनका विसाल हो गया। यानी जिंदगी की मुकम्मल बहारें भी नहीं देखी है और विसाल हो गया। तो कभी शौहर की कब्र देखती, कभी बेटे का मासूम सा चेहरा देखती है। और 6 साल की उम्र में मेरे नबी कितने खूबसूरत लगते होंगे। जिसके गालों की कसम कुरान याद करे वद्दुहा कहकर, जिसके जुल्फों की कसम याद करे कुरान वल्लैल कहकर, जिसकी मां को कुरान गोया के मतलइल फजर हक कहे। आखिर उस रसूल आजम जब बच्चे लड़कपन की तरफ जाते हैं तो बड़े खूबसूरत लगते हैं, जब जवानी की तरफ जाते हैं तो बड़े हसीन लगते हैं। आम बच्चे भी खूबसूरत लगते हैं, तो जिसकी सूरत खुदा भाती हो उसके शबाब का आलम क्या होगा। गोद में आलम शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। तो कभी बेटे का चेहरा देखती है, कभी शौहर की कब्र देखती है और अशार पढ़ती है शौहर की याद में, और बेटे का हाथ पकड़ करके फिर आखिरी बार कब्र देख करके निकलती है। उसी में तबीयत में तब्दीली शुरू हुई, तबीयत बदलना शुरू हुई, सफर शुरू हुआ, यहां तक के कि मकाम अबवा तक पहुंचते पहुंचते अब सफर की हिम्मत नहीं रही। तो उम्मे ऐमन से कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं यहां से आगे जाने की मेरे अंदर ताकत नहीं है। तो उम्मे ऐमन के सहारे अपनी सवारी से नीचे उतरती हैं, और नीचे उतरने के बाद एक छोटा सा टीला था जो अब भी है, उस पर चढ़ती हैं। उस वक्त सफर में तकिया भी नहीं था, तो हुजूर ने अपने नन्हे हाथों से पत्थर तलाश किया और अपनी मां के सरहाने छोटा सा पत्थर रखा और चटाई पे मां को लिटा दिया। हुजूर की अम्मी जान लेटी हुई है और सीने के पास अल्लाह के रसूल, 6 साल के अल्लाह के रसूल जलवगर है। कभी हुजूर की अम्मी हुजूर का चेहरा देखती है और कभी उम्मे ऐमन को देखती है और रोती है। हुजूर मां को रोता देखकर रोते हैं और हुजूर अम्मी से पूछते हैं, मां तुम क्यों रो रही हो। मैं जब भी अपनी मां को मां कहता हूं तो सिर्फ इस नीयत से कहता हूं कि मेरे नबी ने आमिना को मां कह के पुकारा है, बस उस यादगार को जिंदा करना है, इसीलिए हम अपनी मां को मां कहते हैं। बस मां को मां कहने की वजह यह है कि मेरे महबूब ने आमिना को मां कह करके पुकारा है। और अल्लाह अकबर, सारी कायनात जिसको पुकारती है, सारी कायनात जिसको पुकारती है उसने आमिना को पुकारा है। ये मेरे नबी की मां की शान है, ये मेरे नबी की मां का मकाम है। हजरत आमिना खातून देखती, हुजूर कहते हैं, अम्मी तुम क्यों रो रही हो। तो उम्मे ऐमन का हाथ पकड़कर चेहरा रसूल का देखकर कहती है, उम्मे ऐमन अब मैं बचूंगी नहीं, ये मेरी आखिरी सांसें हैं। मेरा बेटा बड़ा शान वाला है, मैंने बड़े शान वाले बेटे को जन्म दिया है, इसको संभाल कर मक्का ले जाना मेरी अमानत को। आमिना खातून कहती, उम्मे ऐमन मेरा बेटा वो है कि मशरिक से लेके मगरिब तक जिसकी शान के डंके बजेंगे। अरे अभी लोगों को पता नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं कि अल्लाह के रसूल है। हुजूर की अम्मी कहती है कि मेरा बेटा वो है कि मशरिक और मगरिब में जिसकी अजमत के डंके बजेंगे। अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद किस शान से नबी की अम्मी दुनिया से जाती है। इमाम जुर्कानी ने लिखा है कि हुजूर की नात पढ़ते हुए वो दुनिया से, हुजूर की नात, हुजूर की नात इस उम्मत में सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। हुजूर की नात सबसे पहले हुजूर के घर से लिखी गई है। नात लिखना ये हुजूर के घर वालों का तरीका है। हुजूर के घर से हुजूर की नात सबसे पहले नात हुजूर के घर में लिखी गई। या तो हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब ने नात लिखी या हुजूर की अम्मी जनाब आमिना ने हुजूर की नात में। अब हजरत आमिना ने क्या लिखा, हजरत आमिना के जो अशार है उसका मफहूम पेश कर रहा हूं। वो कहती है, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर उरूज को ज़वाल आएगा। फरमाती है मगर मुझे कोई भुला नहीं सकेगा, मुझे कोई भुला नहीं सकेगा। जरा देखें तो
میرے بیٹے کا فیضان دنیا میں عام ہوگا. گویا کہ نبی کی نبوت کا اور کس شان سے دنیا سے جا رہی ہے. رسول کے چہرے پہ نظر ہے, زبانوں پہ نعت مصطفیٰ ہے, اور اسی شان سے وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے. روتے ہوئے اچانک آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. جب ماں کی آواز بند ہو گئی اور آنکھیں بند ہو گئی, حضور اپنی ماں کو ہلا کے, امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ایک 6 سال کے پیغمبر کے جذبات تھے, معصوم جذبات. امی تم بولتی کیوں نہیں؟ ام ایمن نے حضور کو پکڑ کے سینے سے لگایا, کہا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے, جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ میرا ایمان ہے. خیر سے ام ایمن نے حضور کو منع کر دیا. اللہ کی اس میں ہزارہ حکمتیں تھی. اگر حضور دوسری مرتبہ بول دیتے نا کہ امی تم بولتی کیوں نہیں, تو تاریخ گواہ ہو جاتی کہ حضور کی ماں بول پڑتی. جس کے اشارے سے سنگ ریزے بولتے ہیں, جس کے اشارے سے پاگل اونٹ بولتے ہیں, جس سے ہرنی باتیں کرتی ہے, ام ایمن نے کہہ دیا شہزادے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے, بلکہ ان کو پھر قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. تو ماں کو قبر میں رکھنا ہے. میں اپنے الفاظ کے جامع میں تاریخی حوالے پڑھ رہا ہوں کہ ماں کو قبر میں رکھنا ہے. تو حضور نے ننھا سا پتھر اپنے ہاتھ میں لیا, ننھے سے گورے گورے خوبصورت ہاتھوں میں, اور اس ٹیلے کو ام ایمن کے ساتھ کھودنا شروع کیا. داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پر اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا اور حضور کے ہاتھوں پر وہ ٹیلا نرم ہو گیا. ام ایمن کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ماں کی قبر کھودی. شاید یہ پہلی اور آخری قبر تھی جس کو رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے کھودی تھی, اور کھود کر کے پھر ماں کو لٹا دیا اور مٹی برابر کر دی. ام ایمن حضور کو دیکھتی ہے اور کہتی چلو مکے چلنا ہے. حضور بڑی معصومیت سے پوچھتے ہیں ام ایمن میری امی, ام ایمن میری امی. ام ایمن نے کہا شہزادے مقام ابوا میں قیامت تک تیری ماں کو ہم چھوڑ جاتے. جیسے ہاتھ پکڑا اور نیچے اتری, حضور نے ہاتھ چھڑا دیا. ام ایمن کہتی حضور نے ہاتھ چھڑا دیا اور دوڑتے ہوئے کہیں چلے گئے. میں ڈھونڈنے لگی, کہیں نہیں ملے. جب مجھے کہیں نہیں ملے پہ پریشان ہو گئی. آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی, آمنہ کی امانت کہاں چلی گئی. جب میں ڈھونڈ چکی کہیں نہیں ملے تو میں ٹیلے پہ چڑھی تو کیا دیکھا کہ حضور ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں, ماں کی قبر سے لپٹ کر رو رہے ہیں. اور میں نے یہ جملے سنے کہ امی تمہیں تو معلوم تھا نا کہ سب کا کوئی نہ کوئی ہے, میرا تو تمہارے سوا اور کون ہے, تم بھی مجھے چھوڑ کر کے چلی. باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے, تم بھی چھوڑ کر راستے میں چلی. رو رہے تھے حضور علیہ السلام. ام ایمن کہتی میں نے اٹھایا اور کہا کہ چلیے چلیے, یہاں تک کہ حضور کو میں لے کر چلی. حضور پلٹ پلٹ کر روتے تھے اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ. یہ ماں ہے. آج جن ماؤں کی قدر آپ کے ہمارے پاس نہیں ہے, ماں ہے. پتہ نہیں ام ایمن نے کس طریقے سے حضور کے آنسوؤں کو خشک کیا, چپ کرایا, کیسے تسلی دی, کیسے حوصلہ دیا, کیسے ہمت دی, یہ ام ایمن جانے حضور جانے. حضور بار بار اپنی ماں کو یاد کرتے رہے. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں جلوہ گر ہیں. صحابہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں. حضور علیہ السلام خاموش خاموش آنسوؤں سے رو رہے. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہے. صحابہ کرام کی عادت تھی جب حضور مجمع میں ہوتے یا محفل میں ہوتے تو صحابہ حضور ہی کو دیکھتے رہتے. جب سرکار کو روتے ہوئے صحابہ نے دیکھا تو دوڑ پڑے حضور کی طرف, کیونکہ حضور کی تکلیف ان کو اپنی تکلیف سے زیادہ گراں تھی اور حضور کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ پسند تھی. میری قوم کے جوانوں, تمہارے پاس واٹس ایپ کے لیے ٹائم ہے نا, بوڑھے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے نا آپ کے پاس. کھیلتے رہو واٹس ایپ,
देखते रहो फिल्में, रात के 3-3 बजे तक फेसबुक पे टाइम पास करते रहो, दोस्तों के साथ घूमते रहो। जिस दिन तुम्हारी माँ का चेहरा कफन में छुप जाएगा, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितनी बड़ी नेमत खोई है। दुनिया की हर नेमत खो करके तुम्हें वापस मिल सकती है, लेकिन माँ बाप उस नेमत को कहते हैं जो एक बार खो जाए फिर वापस वो नेमत नहीं मिलती। उस नामुराद के दिल से जाकर के पूछो जिसके माँ बाप नहीं है और उन्होंने माँ बाप को कभी खुश करने की कोशिश नहीं की। आज वो बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, आज वो तन्हाइयों में पछताते हैं, आज वो अपने आप को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जो गलती उनसे हुई वो गलती खुदा के लिए आप न करें। आप अपने माँ बाप से माफी मांगे, उन्हें राजी करें, उन्हें टाइम दे, उन्हें वक्त दे, उनकी खुशियों के लिए हर कड़वा घूंट पी ले, लेकिन उनको कभी नाराज न करें। अल्लाह के रसूल मस्जिद के कोने में बैठ करके रो रहे, साहबा दौड़ पड़े, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह, आप क्यों रो रहे, आपके रोने की वजह क्या है? सरकार फरमाते हैं, अच्छा हिजरत हुजूर ने 53 साल की उम्र में की है ना, 53 साल, इसका मतलब ये वाकया 53 साल के बाद क्या, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्र अब 53 साल के ऊपर पहुंच गई है और उस वक्त हुजूर माँ को याद करके रो रहे। साहबा ने पूछा हुजूर क्यों रो रहे हैं आप? सरकार फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। हुजूर फरमाते आज मुझे मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। जैसी हजरत आमिना का नाम याद, वो आमिना किसी का बेटा वली, किसी का बेटा गौस, किसी का बेटा कुतुब, आमिना का बेटा महबूब खुदा। यहां सिर्फ एक जुमला कह के आगे बढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं ये सुन्नी उलमा गैर सुन्नियों से लड़ते झगड़ते क्यों रहते हैं? सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, जिस नबी ने हमारी मां के कदमों के नीचे जन्नत रखी है ना, इन लोगों ने जो गैर सुन्नी है मेरे नबी की मां पे कुफ्र का फतवा दिया और कहा कि नबी की मां काफिरा थी, नबी के बाप काफिर थे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ इतनी बात कि जो नबी के माँ बाप को काफिर कहें, हम उनको इमाम कैसे बनाएं, उनसे रिश्तेदारियां कैसे करें, उनके पीछे नमाजें कैसे पढ़ें, उनके पीछे खड़े कैसे हों? हम दाढ़ियां नहीं देखेंगे ना, हम टोपियां नहीं देखेंगे, हम कलम से लिखे हुए अल्फाज भी तो देखेंगे, किताबों में लिखे हुए सबूत भी तो देखेंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नमाज पढ़ने से पहले देख लिया करो नबी के माँ बाप को काफिर कहने वाला इमाम है या नबी के माँ बाप पे कुर्बान होने वाला इमाम है। इसलिए कि शफात आपको भी लेनी है, शफात मुझे भी लेनी है। कियामत के दिन अगर तुम नबी से शफात की भीख मांगने के लिए गए और हुजूर ने कह दिया जो मेरी माँ को काफिर कहता था तू उसके पीछे नमाज पढ़ता था, तो आपके पास जवाब क्या होगा? ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आपके ईमान पर छोड़ना चाहता हूं। हुजूर मस्जिद के कोने में बैठ कर रोते हैं और सरकार से पूछा गया हुजूर क्यों रो रहे हैं? आका फरमाते हैं मेरी अम्मी हजरत आमिना की याद आ गई। साहबा सब मिल के रोने लगे, हुजूर के साथ रोने में शामिल हो गए। हुजूर की अम्मी याद आई है, आज नबी को अपनी वालिदा याद आई, माँ याद आई है नबी को। फिर रोते रोते हुजूर अलैहिस्सलाम को कुछ इफाका होता है, तो सरकार अपने सहाबा से कहते हैं ऐ मेरे सहाबा, इस वक्त मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता, कैसा होता, क्या हाल होता? सहाबा कहते हुजूर क्या होता? आका फरमाते मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता, मैं तुम्हें इशा की नमाज पढ़ा रहा होता और मेरी अम्मी मुझे आवाज देती मोहम्मद इधर आओ, मेरे बेटे मोहम्मद इधर आओ। मेरी मां मुझे आवाज देती। सरकार फरमाते मैं क्या करता? साहबा ने कहा क्या करते? हुजूर फरमाते मैं नमाज को छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी मां की बारगाह में पहुंच। ये मां है, ये मां का मर्तबा है। लेकिन आज मेरा जवान कैरम छोड़ करके मां के पास आने के लिए तैयार, मोबाइल का गेम छोड़ के अपनी माँ के पास, बाप के पास आने के लिए तैयार नहीं है।
हुजूर फरमाते जो माँ बाप की नाफरमानी करेगा वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम कर दिया जाएगा। याद रखना, कितने भी बड़े मनसब पे फाइज हो जाओ, माँ बाप से तुम कभी बेनियाज नहीं हो सकते। जनाब मूसा से अल्लाह ने कहा था, मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज की मौला तूर पर तो हमेशा आता हूं, पहली बार तो नहीं आया। इरशाद हुआ, जब तुम घर से निकलते थे तो मां आंचल पसार के दुआ करती थी, अल्लाह मेरे मूसा की तबीयत में गुस्सा और जलाल ज्यादा है, अगर तुझसे कलाम करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो तू दरगुजर कर देना, दरगुजर कर देना, आवाज ऊंची हो जाए तो। मूसा अब तेरे पीछे दुआ करने वाली मां नहीं रही, इसलिए कहा जा रहा है जरा संभल कर आना। अल्लाह के कलीम को कहा जाता है पीठ के पीछे दुआ करने वाली मां अब तेरे घर में नहीं है तो जरा संभल कर आना। गौर तो करें आप, नबी से कहा जा रहा है मां की दुआ क्या है। सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, बद्दुआ करे, तन्हा मां दुआ करे, अल्लाह मां की दुआ कबूल करे, सबकी बद्दुआ रद्द कर दे। और तन्हा मां बद्दुआ करे और पूरी दुनिया मिलकर दुआ करे तो अल्लाह सबकी दुआ रद्द कर दे, मां की बद्दुआ कबूल कर ले। एक दिन हजरत मूसा अलैहि सलाम जंगल में चल रहे, चलते चलते थक गए, चलते चलते थक गए। अल्लाह से कहते मौला थक गया हूं, सवारी नहीं है। अल्लाह ने फरमाया एक मेरा बंदा है, उससे जाकर कहो। हजरत मूसा गए, उससे कहा मेरे पास सवारी नहीं है। उसने दुआ की, अल्लाह बादल जमीन पे भेज ताकि मैं तेरे इस बंदे के लिए सवारी का इंतजाम करूं। बादल जमीन पे उतर आया। उसने कहा जनाब चढ़िए, और बादल पे चढ़ करके जहां जाना चाहते जाइए। हजरत मूसा बादल पे सवार हो गए, बादल चल पड़ा। और इसकी मौला कितना नेक बंदा ये, इसकी दुआ से बादल जमीन पे आया। इरशाद हुआ मूसा कोई अमल ही नहीं है इसका, ये नेक नहीं है जिसको तू नेक समझ रहा है। फिर मौला इसकी दुआ की इतनी अहमियत। इरशाद हुआ उसने तो बादल बुलाया, अगर आसमान भी जमीन पे बुलाने की दुआ करता तो हम आसमान को भी जमीन पे उतार देते। अर्ज की जब ये नेक नहीं है, इतना नेक नहीं है, तो इसकी दुआ की अहमियत क्यों है? कि इसकी नेकी की वजह से नहीं, ये हमेशा अपनी माँ की खिदमत करता था और माँ को खुश कर दिया था। माँ ने मरते मरते कहा अल्लाह इसने मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया, ये जब भी तुझसे जो दुआ करे तो इसकी हर दुआ को कबूल कर लेना। इसकी मां की दुआ की बरकत है, इसकी मां की दुआ की नेकी कुछ नहीं है ज्यादा, इसके पास मां की दुआ की बरकत है। हुजूर फरमाते हैं जो मां बाप की नाफरमानी करे वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघे, बल्कि जिससे मां बाप नाराज हो वो भी जन्नत में नहीं जाएगा। शहीद होगा तो भी जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने लिखा है अगर कोई शहीद हो जाए ना, शहीद और माँ बाप या दोनों में से कोई एक नाराज हो तो भी वो जन्नत में नहीं जाएगा, मगर चूंकि वो शहीद हुआ है तो जहन्नम में भी नहीं जाएगा। जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक मकाम आराफ है, वहां रखा जाएगा। फिर अल्लाह उसके माँ बाप को पहले राजी करेगा, जब तक माँ बाप राजी नहीं होंगे उस शहीद को जन्नत नहीं मिलेगी। सोचो शहीद होकर भी माँ बाप की रजा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, तो हमें अल्लाह अकबर सोचिए तो सही। और अपनी गुफ्तगू को एंड पर पहुंचाने के लिए एक बात आपसे कहूं, यार जो माँ बाप का गुस्ताख हो, तवज्जो आपकी, ध्यान है आपका, है जब माँ बाप का कोई गुस्ताख हो, कलमा पढ़ के, नमाज पढ़ के, हज करके, ज़कात दे के, शहीद होकर भी माँ बाप की गुस्ताखी की वजह से जन्नत में नहीं जा रहा है, तो जो रसूल पाक का गुस्ताख हो वो कलमा पढ़ के जन्नत में कैसे जा सकता है? माँ बाप से बड़ा मर्तबा नबी का है ना। लोग कहते हैं कैसी बात करते हैं मौलाना आप, कलमा पढ़ने वाले जन्नत में जाएंगे। अरे कलमा पढ़ के माँ बाप की गुस्ताखी किए तो जन्नत नहीं मिलेगी, तो कलमा पढ़ के नबी की गुस्ताखी किए तो जन्नत कैसे मिल सकती? दो बातें हो गई, शराब के आदी को जन्नत की खुशबू नहीं, माँ बाप के नाफरमान को जन्नत की खुशबू नहीं, और कोई किसी पे एहसान करे, तीसरा कोई किसी पे एहसान करे और एहसान करके एहसान जताए, एहसान करके एहसान जताए, अल्लाह उसको भी जन्नत की खुशबू नहीं अता करेगा। मतलब